Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan, Superhub. I would like to welcome you all to HIV ECHO first formal session after its launch by IHITC Islamabad and Parsa Eco Pakistan. This session is in series of HIV ECHO and it's in collaboration with a Medical Microbiology Infectious Disease Society of Pakistan, Common Management Unit at TB, HIV, AIDS and Malaria, and Apna Merit Medical Education Research, International Training and Transfer of Technology. Today's session is titled HIV Management and Care, and our expert for today is Dr. Shobha Lakshmi. Before I introduce you to our experts for today's session, we have to go to some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with the objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use the raise hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel, and link will be shared by Haris in the chat box. For CME credits for upcoming session, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the panel. Our expert, Dr. Shobha Lakshmi, is Assistant Professor in Infectious Disease at Dow University of Health Sciences. She has done her fellowship in internal medicine and infectious disease from College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and diploma in tropical medicine and hygiene from Royal College of Physicians, UK. She has been very active managing the COVID pandemic. Her special interests are TB, HIV, and infection in immunocompromised. So I will now hand over to Dr. Razia Fatma, who is also the facilitator for today's session. Dr. Razia. Yes, assalamu alaikum everyone, and welcome again to the ECHO session. ये हमारा fourth session है. We already had two sessions on TB. One was on launch, another was on management, and now it's the fourth one. One was for the launch of HIV session, and now it's for the HIV care and management. तो आप सबको welcome हमारी तरफ से. Kindly ये pre-test आपसे शेयर किया गया है चैट में, फिल करेंगे. They will be eligible for certificates and CME as Kiran has already explained. तो ये बहुत ज़रूरी है, काइंडली आप इसको फिल कर दीजिए. थैंक यू. हम आपको 5 minutes दे रहे हैं फॉर फिलिंग
Kindly it is again requested कि ये pre-test fill कर दीजिए. We have few responses till now. Eighteen responses out of 47 participants. So kindly you're requested to fill in this pre-test. So we are giving a couple of minutes again to fill this pre-test because अभी हमारे पास 23 responses हुए हैं, तो just couple of minutes more. Thank you. We will start at 10 past 2. 2:10 पे इंशाल्लाह start करें. जी, I think 10 past 2 हो गए, so we should start it formally, and I hand over to Dr. Shobha Lakshmi for her talk on the HIV management and care. Just a request that we will keep it to 35 minutes so that we have time for question answers. So over to you, Dr. Shobha.
Dr. Shobha is there? Kiran, you are muted. Yeah. Shobha is here. अगर मसला है कोई तो I can start, क्योंकि मेरे पास एक केस भी है. Maybe we can start with case presentation. Yes, I think Shobha has not joined yet. शोभा थी, ऑफलाइन हो गई. So let me share my screen. और हम केस प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं. So this case was submitted by Dr. Holaram. Dr. Holaram is the Chief Medical Officer, HIV/AIDS Adult Treatment Center in Larkana. अगर शोभा आ गई है तो मैं रुक जाऊं केस के लिए, otherwise I can proceed. Madam, Shobha is there. She is online. Okay, so let's ask her if she's ready. I will stop, otherwise I will continue with my case. केस शुरू कर देते हैं. केस ब्रीफ है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, और जैसे केस खत्म होगा देन शोभा शुरू कर सकती है. सो ये केस सबमिट किया डॉक्टर होलाराम ने, और दिस इज अ रियल केस. ये है एक 38 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जिसका HIV डायग्नोज हुआ था 15 जुलाई को. और वो जब वो आया तो उसने हिस्ट्री दी कि 15 दिन पहले एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट उसकी स्टॉप की गई थी, और ये ट्रीटमेंट जो थी 1 महीना पहले शुरू की गई थी. यानी आने से कोई 1.5 महीना पहले के करीब उनको TB की दवाइयां शुरू की गई थी, जो कि 15 दिन पहले बंद की गई हैं क्योंकि लिवर पे असर होना शुरू हो गया था. सो ATT तो 15 दिन पहले बंद हो चुकी, लेकिन इस वक्त जो दवाइयां वो ले रहा है वो है सेप्ट्रॉन DS once a day एंड एजिथ्रोमाइसिन 1500 मिलीग्राम्स पर वीक. अब जब एग्जामिन किया तो पता ये चला कि डीपली जॉन्डिस्ड है, थोड़ा सा ड्राउजी भी है पेशेंट. GCS इज 13/15 और ओरल कैंडिडाइसिस है मुंह खोल के जब देखा तो. अच्छा, लिवर फंक्शन टेस्ट जब कराए तो उसका रिजल्ट ये है. टोटल बिलीरुबिन 10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जिसमें से ज्यादातर डायरेक्ट है. 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डायरेक्ट बिलीरुबिन. Gamma GT is 210, slightly elevated SGPT is 57, जबकि upper limit is 45 international units per liter. Alkaline phosphatase is 260, जबकि upper limit is 129. SGOT is 108, जबकि upper limit is 35 for males. यूरिन DR की भी रिपोर्ट वो लेके आया है आपके पास. और यूरिक एसिड इज विद इन नॉर्मल रेंज. और यूरिन DR के अंदर जो चीजें नोटिसेबल हैं उसमें प्रोटीन 3+ है और ग्रैन्युलर कास्ट्स हैं. पस सेल्स भी 4 to 5 हैं, विच मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, लेकिन देखते हैं. वो कुछ और टेस्ट के रिजल्ट्स भी अपने साथ लेके आए, जिसमें हेपेटाइटिस C एंटीबॉडी है जो कि नेगेटिव है, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो कि नेगेटिव है. इसके अलावा किसी ने उसका CSF करके क्रिप्टोकोकल एंटीजन भी कराया हुआ था और टॉक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडीज भी कराई हुई हैं. इनके दोनों का रिजल्ट इज अवेटेड. उनका CD4 काउंट इज 97. सो इस पे जो सवालात उठाए गए इस केस के ऊपर वो ये हैं कि क्योंकि ओरल थ्रश है मरीज को, तो कैन वी स्टार्ट फ्लूकोनाजोल इन दिस पेशेंट राइट अवे, या हम इंतजार करें कि LFTs नॉर्मल हो जाएं. दूसरा सवाल ये है कि हम क्या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसमें स्टार्ट कर दें. और तीसरा सवाल ये है कि क्या हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी दोनों एक साथ शुरू कर दें या नहीं. सो ये सवालात थे. तो प्रेजेंटेशन मैं रोक रही हूँ अब, और इन सवालात के जवाब अब हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं. तो इफ शोभा इज ऑनलाइन, परहैप्स वी कैन पुट दीज क्वेश्चंस टू डॉक्टर शोभा.
Is Shobha on or off? I talked to Dr. Shobha and she was online. Kiran, can you check? She looks online. Okay. So हम जब तक शोभा नहीं ज्वाइन करती हम थोड़ा सा और इस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. So उसने पेशेंट ने आपको टीबी की हिस्ट्री दी है. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये पल्मोनरी टीबी है, डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीन एक्सपर्ट. सो डायग्नोसिस ऑफ टीबी जो है वो तो कंफर्म्ड ही है और लंग्स की है, हमें ये भी पता है, लेकिन मरीज ड्राउजी है. सो पहला सवाल जो जहन में आना चाहिए वो ये कि कहीं टीबी मेनिंजाइटिस तो नहीं. दूसरा सवाल ये है कि क्या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की वजह से मरीज ड्राउजी हो रहा है. और तीसरा सवाल ये कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सीएनएस इन्फेक्शन हुआ है किसी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की वजह से जिस वजह से पेशेंट ड्राउजी है. सो अज्यूमिंग कि पेशेंट को वाकई ही टीबी है एंड इट इज लोकेटेड टू द लंग्स, 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद लिवर एंजाइम्स आर डिरेंज्ड. सो अब जबकि एक्सटेंसिव ओरल थ्रश है और मरीज को खाना निगलने में भी दिक्कत हो रही है, तो क्या हम इस पेशेंट में जिसके एलएफटीज डिरेंज्ड हैं इसमें फ्लूकोनाजोल शुरू करें या ना करें? डॉक्टर शोभा, आई होप आपने केस देख लिया है. सो अगर नहीं देखा है तो बता दें, अदरवाइज सॉरी कि वो थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से चल नहीं रहा था और लॉगिन. तो इसमें ये है कि इसमें एक क्वेश्चन तो ये है कि ये टीबी है, इसमें फ्लूकोनाजोल करे या ना करे स्टार्ट, कंसीडरिंग के पेशेंट जो है इस वक्त आपके पास सिवियर ओरल थ्रश है और वो सिम्टोमेटिक है, वो कुछ खा नहीं सकता, आप दवा भी नहीं दे सकते, तो इसमें आपको फ्लूकोनाजोल स्टार्ट करनी चाहिए विथ मॉनिटरिंग. डिरेंज्ड लिवर फंक्शंस के साथ आप फ्लूकोनाजोल देते हो, बट आपको इन पेशेंट्स को क्लोज मॉनिटरिंग पे रखते हैं और हम उनको फॉलो करते रहते हैं. एक और ऑप्शन है कि अगर इनके लिवर फंक्शंस बहुत ज्यादा डीरेंज हो सके तो फिर आपके पास जो ऑप्शन होता है वो एम्फोटेरेसिन होता है, जो कि विच इज एक्चुअली अ टॉक्सिक ड्रग. सो एज लॉन्ग एज पेशेंट कैन टेक ओरली, आप प्रेफर करेंगे कि आप ओरल ट्रीटमेंट पे रखें rather than going for IV medication which is more toxic. थैंक यू वेरी मच. दूसरे सवालात ये थे कि इस किस्म की हेपेटोटॉक्सिसिटी के साथ क्या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और ATT शुरू किए जा सकते हैं? मे बी आप अपनी प्रेजेंटेशन कर लें, देन वी कैन कम बैक टू दीज ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि हमें रोजमर्रा की अपनी प्रैक्टिस में बार बार जिनको एड्रेस करना होता है. सो ओवर टू यू. जी स्क्रीन शेयर कर लें शोभा. जी बिल्कुल मैं कर. तो हम बात करेंगे HIV केयर और मैनेजमेंट पे, और मेजॉरिटी हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियंस इस टॉक को सुन रहे हैं. तो हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स जो इस प्रेजेंटेशन के हैं वो ये हैं कि हम किस तरह से HIV अर्ली डायग्नोज करें, लोगों को उसको डायग्नोज करें और उसको अप्रोप्रिएटली मैनेज करें, ताकि जो बर्डन है
जो HIV का बर्डन है हमारे मुल्क में, हम उसको कम कर सकते हैं, और जो ग्लोबल टारगेट्स हैं उसको हम मीट कर सकते हैं। एंड शेयर कि हम ग्लोबल टारगेट्स जो हैं उससे हम कितने पीछे हैं HIV केयर और मैनेजमेंट में, कि हम इतना अच्छा, हम बहुत ही बुरा करे हैं एज फार एज ग्लोबल टारगेट्स आर कंसर्न. So this is a usual case of a patient who presents in a primary care with a history of fever, weight loss for 2 years, shortness of breath on exertion, and 4 to 5 episodes of loose stools per day. This has been there for past 2 to 3 months. And on examination, you see a thin, lean man with significant wasting, tachypnea. He's maintaining saturation on 5 liters of oxygen, and he's quite tachypneic on exertion. His chest X-ray shows bilateral infiltrates, and patient has received treatment for pulmonary TB in the last 1 year. So ये एक scenario है जो कि अगर outpatient या inpatient present कर सकता है. हम complicated cases पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक general जो case आपके पास present हो सकता है. तो क्या possibilities हो सकती है इसमें? कोई जवाब देना चाहेगा? आप chat box में अपने जवाब दे सकते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक केस है जो हमारी क्लिनिक में कभी आ जाता है. अब ऐसे केसेस में हम क्या क्या सोच सकते हैं? एनी आइडिया? कोई कुछ कहना चाहेगा? टीबी हो सकता है, डिसेमिनेटेड टीबी, और निमोनिया हो सकता है, आजकल कोविड हो सकता है. ये सारी प्रेजेंटेशन कोविड की वजह से भी हो सकती है. लेकिन एक चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं इन पेशेंट्स में, और ये पेशेंट्स रिपीटेड टीबी के कोर्सेज ले रहे होते हैं या फिर एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे होते हैं, मेट्रोनाइडाजोल भी इनको मिल जाता है बिकॉज लूज मोशंस होते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स की HIV टेस्टिंग नहीं की जाती है, विच इज रियली इम्पोर्टेंट, कि अगर हाँ अर्ली डिटेक्ट हो जाए और इनको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अर्ली मिल जाए तो दे कैन लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ. और इस टॉक का आइडिया भी ये है कि आपको सेंसिटाइज किया जाए, आपको बताया जाए कि ऐसे पेशेंट्स जो अगर आपके पास आते हैं तो आपने उनकी HIV टेस्टिंग करानी. सो हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ HIV की. इस वक्त पाकिस्तान में जो है, जो एस्टिमेट है 2020 के, सो 200,000, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, हो सकता है केसेस इससे ज्यादा हो. सो जो रिपोर्टेड हैं, जो 2020 में जो इस वक्त पीपल लिविंग विद HIV है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 200,000 या 2 लाख के करीब है. और उस जो हमारी टोटल प्रिवेलेंस है पाकिस्तान में वो है 0.2%, दैट इज 0.2. और ये फीमेल्स में थोड़ी सी कम है, दैट इज 0.1 पर 100,000 पॉपुलेशन, और जो मेल्स हैं उसमें 0.2 है. और जो इंसिडेंस है पर 1000 पॉपुलेशन वो है 0.12. और 2020 में जो न्यूली इन्फेक्टेड केसेस आए थे HIV के वो 25,000 थे, और जो जिन डेथ्स हुई थी, जो रिपोर्टेड डेथ्स थी 2020 में, दैट वर 8,200. So still the prevalence is very low, that is 0.2 per 100,000 population, and men में 0.2 है और women में less than 0.1 है. So we are still not considered a very high prevalent country for HIV. High prevalent countries में जो prevalence है वो 1 per 100,000 population है. लेकिन ग्लोबल HIV टारगेट्स क्या हैं? ग्लोबल HIV टारगेट्स जो HIV के पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे कि बाय 2020 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है, 90% जो HIV पॉजिटिव हैं उनके जितने भी दुनिया में हैं, दे शुड नो कि उनका HIV स्टेटस क्या है. 90% उसमें से 90% जो है वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे हो, और उसमें से भी 90% जो है वो उनके वायरल सप्रेशन अचीव की. और हमारा टारगेट, हमने किस 2020 के इस टारगेट को कितना अचीव किया ये भी देख लेते हैं. तो आई टोल्ड यू, रिपोर्टेड पाकिस्तान में जो केसेस हैं HIV के वो 200,000, 2 लाख के करीब है. लेकिन उसमें से लोग कितने हैं जिनको अपना HIV पर स्टेटस पता है? वो सिर्फ 45,000.
तो जो परसेंटेज जो 90% होनी चाहिए, हमारी परसेंट क्या है, दैट इज ओनली 22% actually out of the cases of people living with HIV is who know their status is only 22%. So 90% की जगह हम 22% है. People who are living with HIV who are on ART, that is 24,000. अब इन 45,000 में से भी सिर्फ 24,000 on ARV है. So 90% of those जो कि जिनको स्टेटस अपना पता हो चाहिए, ग्लोबल टारगेट से हैं कि वो HIV उनको वो ARV पे हो, लेकिन हमारे जो है जो पॉजिटिव है दैट आर ओनली 24,000. सो सिर्फ 12% ऑन ARV पे है. और उनमें से कितने वायरली सप्रेस्ड हैं, आई कुड नॉट फाइंड डेटा. कोई डेटा ही नहीं है कि मेरे पास जो लोग HIV पे हैं और ARV पे हैं उनके पास सप्रेस्ड पैरालोड्स कितना है. सो हमें उस टारगेट को मीट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और ये प्रेजेंटेशन भी उसी टारगेट को अचीव करने का एक हिस्सा है. ठीक है, अब बात करते हैं हम HIV की टाइप्स पे. HIV की 2 टाइप्स हैं, HIV-1 और HIV-2. HIV-1 जो है वो सारी दुनिया में कॉमन है, सब साहारन अफ्रीका. हमारे पास भी HIV-1 है, हमने अब तक HIV-2 केसेस देखे नहीं है. HIV-2 जो है वो जो वायरस है वो होता है सिर्फ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में. कभी कभी कुछ तो केसेस इंडिया और यूरोप से रिपोर्ट हुए हैं. और ये जो डिजीज जो HIV-2 जिनको होता है वो अक्सर वो उनकी डिजीज स्लो प्रोग्रेस करती है. हम अक्सर रिपोर्ट्स में देखते भी हैं कि HIV-1+2 डिटेक्टेड. दैट डज नॉट मीन कि उस आदमी को 2 इन्फेक्शन है, HIV-1 भी है, HIV-2 भी है. इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे करता है जिससे हमने ये टेस्ट किया है वो दोनों HIV-1 और HIV-2 को डिटेक्ट करता है. तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल वायरस, इट्स एन RNA वायरस. बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, छोटा सा वायरस है. उसकी मशीनरी भी बहुत छोटी सी है. तो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, उसमें एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एक उसका कैप्सूल है जो कैप्सूल होता है, और एक एनवेलोप है. और ये वायरस इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी बहुत कम अरसे के लिए सर्वाइव करता है. ये बहुत ही, इसको बॉडी सिक्रीशंस चाहिए, इसको बॉडी फ्लूइड्स चाहिए, इसको बॉडी चाहिए, ह्यूमन बॉडी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज इसके पास DNA नहीं है और ये अपना RNA एंजाइम्स यूज करता है और ह्यूमन DNA से ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है और डिवाइड करता है, और फिर ये अपने सेल्स को इन्फेक्ट करता है और आगे जाके ये हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है. तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल और इनकॉम्पिटेंट वायरस है. इट नीड्स ह्यूमन मशीनरी, ह्यूमन genetic material, human cell to replicate. Otherwise, it cannot replicate on its own because it's an RNA virus. Transmission की बात है. There are only few methods of transmission. So, controlling pandemic and controlling epidemic and controlling HIV is kind of easy because modes of transmission जो है ना वो बहुत limited है, बहुत कम है. It's not like COVID के हवा में भी है, बॉडी में भी है, हाथों पे भी है, एयर में भी है. इसके mode of transmission are very limited. So we can actually control it quite easily अगर हम इन modes of transmission को target करें. So it is transmitted by use of sterile syringes, pregnancy and breastfeeding. 10% is the chance that if mother is positive, she may transmit the virus to the baby while being pregnant or breastfeeding. Blood transfusion, the risk is only 5%, organ transplant 5%, and unprotected sex 80%. See, and it is not transmitted by food, drink, insect bites, kissing, touching, sharing clothes, sharing toilet seats. और एक और टर्म यूज होती है U is equal to U. It means कि अगर आपकी बॉडी में वायरस अनडिटेक्टेड है, अनडिटेक्टेड इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल. U is equal to U. So अगर आपकी बॉडी में वायरस अनडिटेक्टेड है
और वायरल लोड सप्रेस्ड है तो आप उसको किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लोग जो पॉजिटिव हैं HIV उनको अर्ली डायग्नोज करें, उनको ट्रीट करें, उनको वायरली सप्रेस करें। वंस दे आर वायरली सप्रेस, द वायरल लोड इज अनडिटेक्टेड, they cannot transmit the disease to others. So controlling this disease is kind of easy as compared to diseases which have mode of transmission, which are transmitted through contact or surfaces or air. This is the life cycle of HIV. It attaches to the helper T cells. This HIV spikes bind to the cell, it fuses with the cell, and HIV RNA is released into the cell where it replicates. So how does it causes disease? This is really important क्योंकि time कम है, बहुत ज़्यादा pathophysiology में नहीं जाऊँगी. If virus, but this is simple, if virus enters into the healthy cells, it destroys T cells and replicates itself. The immune system breaks down. Virus itself does not do anything. Once CD4 cells are depleted, आपकी body susceptible हो जाती है to acquire infections by the organisms which would not cause disease in an immunocompetent person. And eventually आपका immune system इतना suppress हो जाता है कि उसमें infection से capacity, लड़ने की capacity कम हो जाती है and death may occur. So this is the natural course of the disease. That is, there is a period of acute infection followed by clinical latency. The clinical latency period range from 8 to 9 years. So अगर किसी को 10 साल पहले उसका कोई exposure हो सकता है physically 8 से 10 साल तक बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई symptoms ही ना हो, और eventually लेकिन अगर उसने treatment नहीं किया तो उसका CD4 काउंट कम होता जाएगा, वायरल लोड बढ़ता जाएगा और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते जाएंगे और डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी. एंड this process, the entire process takes 9 to 10 years. This is when the acute infection occurs. The virus, the CD4 count dips a bit, लेकिन उसके बाद वो एक प्लेटू पे आ जाता है और फिर आस्ते आस्ते over the years वो डिक्रीज होना चाहिए होता है. इसी तरह वायरल लोड भी प्लेटू पे रहता है, आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है. सो ये इसका नेचुरल कोर्स है और इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट ARV अर्ली, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जब पेशेंट डायग्नोज हो, आपको पता हो कि पेशेंट को HIV है, उसी वक्त स्टार्ट कर लें ताकि आप उसको पीरियड दें कि उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, उसके CD4 नॉर्मल रहे और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके. These are the symptoms of acute HIV infection, which are like any viral illness. On the basis of symptoms, you cannot differentiate from other viral illnesses, and the patient may present like जिस तरह से normal viral infections होते हैं, upper respiratory tract infections होते हैं कि जिसमें fever होता है, body rash होता है, throat कभी-कभी हो सकता है, lymphadenopathy हो सकती है, headache हो सकता है, रैश हो सकता है, जॉइंट एक्स एंड पैक्स हो सकते हैं. फिर आ जाती है क्लिनिकल स्टेज पे पीरियड ऑफ लेटेंसी व्हिच मे बी ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 7 to 8 years डिपेंडिंग कि आपके बेसलाइन CD4 कितना था, या फिर कभी-कभी ये पेशेंट्स जो है जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज है, ये सारी स्टेजेस पे HIV आपको ससेप्टेबल बनाता है TB के. तो किसी भी लेवल ऑफ HIV, अगर आप स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, ये आपको TB आपको किसी भी स्टेज पे लग सकता है. सो हमेशा TB और HIV साथ साथ चलते हैं. तो अगर किसी के को सिम्टम्स आ रहे हैं और कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है या डायरिया नहीं हो रहा है या कहीं भी आपको सस्पिशन है, तो आप TB के लिए HIV पॉजिटिव पेशेंट को जरूर एवेलुएट करें. और अगर आप TB का ट्रीटमेंट नहीं करते तो मोर्टेलिटी इज हाई. WHO ने HIV को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट बहुत ही सिंपल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कर दिया है. तो वो एरियाज जहाँ पे आपको CD4 अवेलेबल नहीं है या बहुत महंगा है, बहुत इवन अच्छे गवर्नमेंट सेटिंग्स में भी इसकी कॉस्ट जो है वो रफली 8 से 10 हज़ार रुपए. तो आप CD4
इनिशियल प्रेजेंटेशन में ना कराए, आप क्लिनिकली पेशेंट को असेस कर सकते हैं, उसकी स्टेजिंग कर सकते हैं। और अब तो ये रिकमेंडेशन है कि HIV पॉजिटिव स्टार्ट ARV, तो वो CD4 को जो कराते थे उसकी रिकमेंडेशन भी खत्म हो गई। तो स्टेज 1 में एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट, कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल इंसान होगा। लिम्फेडेनोपैथी कभी कभी होती है। क्लिनिकल स्टेज 2 में एक्चुअली this is usually these patients present 6 to 7 years later when they have unexplained weight loss, but it is less than 10% of the presumed जो वेट लॉस होता है उससे मतलब कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। 4 से 5 किलो अगर है, उससे ज्यादा वेट नहीं होता। मॉडरेट वेट लॉस होता है, लेकिन पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ। उससे हर्पीज हो सकता है, एंगुलरचिलाइटिस हो सकता है, रिकरेंट ओरल अल्सर्स हो जाते हैं, पेपिलोप्लोरेटिक इरप्शन भी आ सकती है, नेल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल सेबोरिक डर्मेटाइटिस। अब सवाल ये होगा कि भाई ये तो नॉर्मल है, मतलब वेट भी इतना लॉस नहीं है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रिकरेंट हो रहे हैं, हर्पीज हो रहा है, ये तो वैसे ही ओल्ड एज में कॉमन होता है। ओरल अल्सरेशंस होती हैं, ये तो किसी को भी हो सकता है। तो आप इसमें HIV कैसे सस्पेक्ट करेंगे? So the idea is to keep index of suspicion high. Like अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं भी है बट आपका दिमाग कहीं आपको कह रहा है कि हाँ ये HIV हो सकता है, तो टेस्ट कराने में कोई बुज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट आपको 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है। बहुत इकोनॉमिकल है, शायद एक स्ट्रिप जो है वो 50 रुपीज की होती है और बहुत जगह वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको कहीं भी सस्पेशन हो रहा है, आप ये सारी प्रेजेंटेशंस हैं लेकिन आपको सस्पेशन है, तो आप HIV टेस्ट उस मरीज को ऑफर जरूर करेंगे। फिर आ जाती है क्लिनिकल स्टेज 3, जिसमें एक्चुअली जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी का ब्रेकडाउन, इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, CD4 कम हो जाते हैं। इसमें एक्चुअली यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो कदरे सिक होते हैं, लाइक उनका वेट लॉस जो है वो अनएक्सप्लेन्ड सिवियर वेट लॉस होता है। इसका मतलब है ग्रेटर देन 10% ऑफ प्रिज्यूम्ड बॉडी वेट। लाइक अगर जो है किसी का 50 किलो वजन है और वो 40 किलो का हो जाए, तो दिस इज अनएक्सप्लेन्ड सिवियर वेट लॉस। लेकिन अगर किसी का 60 किलो वजन है और वो 55 हो जाता है, तो दैट इज लेस देन 10%। Unexplained chronic diarrhea for longer than 1 month, unexplained persistent fever, persistent oral candidiasis, hairy leukoplakia की पिक्चर में आपको दिखाती हूँ कि टंग पे सफेद पैचेस हो जाते हैं, tuberculosis always keep index of suspicion high, severe bacterial infections like pneumonia, empyema, bone and joint infection, meningitis हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, मुंह में बहुत सारे अल्सर्स हो जो कि सही नहीं हो रहे, जिंजिवाइटिस, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें तो बस मतलब अगर आपके पास पेशेंट इन सारी प्रेजेंटेशंस के आस आ रहा है तो HIV जरूर टेस्ट कराएं, इररिस्पेक्टिव के वो कौन से जेंडर को बिलोंग करता है, वो बच्चा है, बड़ा है, क्या है, आपने उसको HIV टेस्टिंग ऑफर करनी है। Because diagnosing and treating early is better than कि हम टेक्सचुरल टैबूज की वजह से टेस्ट ना कराएं और उसकी डिजीज को प्रोग्रेस होने दें क्लिनिकल स्टेज 4 पे, जिस पे अगर हम HIV ARV शुरू भी करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इम्प्रूव नहीं होती, और अगर हम ARV अर्ली शुरू करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सपेक्टेंसी इज नॉर्मल लाइक एनी पर्सन। जैसे मेरी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वैसी इनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है अगर आपने दवा HIV के अगेंस्ट दैट इज ARV जल्दी शुरू की। फिर हो जाती है क्लिनिकल स्टेज 4, जब मरीज हॉस्पिटलाइज होता है, पतले बीमार होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, बेड रिडन हो जाता है, सीवियर वेस्टिंग होती है, एक किस्म का निमोनिया होता है, निमोसिस्टिस यूरोवेस्टिन निमोनिया, जिसमें जो है आपकी जो है बिल्कुल चलते हुए सांस फूलता है, रिकरेंट सिवियर बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, बार बार हर्पीस सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शंस होते हैं, सिवियर हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो सकता है, ओरोजेनाइटल, ओरो एनोरेक्टल और
Esophageal candidiasis. Oral candidiasis was in stage 3. Esophageal candidiasis means clinical stage 4. Extrapulmonary tuberculosis जो लंग के अलावा हो, जैसे आंतों की हो या दिमाग की हो, मेनिंजाइटिस हो. कपोसी सार्कोमा एक किस्म का कैंसर है जो कि वायरस कराता है. साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन जिसमें आपके रेटिनाइटिस हो सकता है, आपकी कोलाइटिस हो सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सोप्लाज्मोसिस, दिमाग में रसोलियां बन जाती है फ्लैश साइट की वजह से, HIV, इंकेफेलोपैथी, डिमेंशिया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस एक किस्म का फंगस है, disseminated non-tuberculous mycobacterial infection, progressive multifocal encephalopathy, आपके डायरिया हो सकता है because of cryptosporidium, disseminated mycosis like fungal infections जैसे extrapulmonary histoplasmosis and coccidiomycosis, ये हमारे पास नहीं होती है, अमेरिका में ज्यादा कॉमन है. लिम्फोमा हो सकता है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कैंसर हो सकता है सर्विक्स का, और लीशमैनियासिस हो सकता है. ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब अगर ऐसा पेशेंट अगर क्लिनिक में आपके साथ प्रेजेंट करे, ये हर्पीज जोस्टर है जो है मल्टीपल डर्माटोम्स को इन्वाइट कर रहा है, एक्सटेंसिव डिजीज के साथ प्रेजेंट करा है, तो उसमें आप HIV टेस्ट कराएंगे. ये HIV वेस्टिंग है, सीवियर वेट लॉस है, ये फंगल एंड इन्फेक्शन है, ये हैरी ल्यूकोप्लेकिया है, सफेद से पैचेस बने हुए हैं, ये कपोसी सार्कोमा है, ये देखें कैंडिडियासिस है लेकिन सिर्फ मुंह तक नहीं फैला हुआ. आजकल हम कैंडिडियासिस जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी देखते हैं क्योंकि स्टेरॉइड उनको लॉन्ग टर्म देते हैं, लेकिन ये देखें ये पीछे ओसोफेगस तक इसने इन्वॉल्व किया. फिर ये एक किस्म का निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कैरिना निमोनिया इसको कहते हैं, जिसमें एक किस्म का फंगस है जो लंग को इन्वॉल्व करता है. ये आम इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट को नहीं होता, दिस इज ओनली सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स. इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मैं चलता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो सांस फूलती है और एक्सरे में आपके इन्फिल्ट्रेट्स हो सकते हैं. आजकल कोविड में भी आपको ये प्रेजेंटेशन मिलती है लेकिन वो बहुत एक्यूट होती है. फिर CMV एक किस्म का वायरस है जो आपकी आंखों को इन्वॉल्व कर सकता है, आंखों में हेमरेजेस हो सकते हैं, विजन चली जा सकती है जिसे रेटिनाइटिस कहते हैं, ये रेटिनाइटिस करा सकता है, और कोलाइटिस और ब्लडी डायरिया करा सकता है. ये आपके क्रिप्टोस्पोरिडियम एक किस्म का पैरासाइट है जो कि पानी से खराब पानी या अनसैनिटाइज वाटर पीने से होता है. इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, पर्सन हो, उसमें ये कुछ नहीं करता, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ये सिवियर वाटरी डायरिया करा सकता है. इसको स्टूल DR कराते हैं और हम अगर उसको मॉडिफाइड स्टेन कराएं तो उसमें ये सिस्ट हमें नजर आ जाती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है. दिमाग में रसोलियां हो सकती हैं बिकॉज ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लिम्फोमा. ठीक है. फिर TB और HIV मैंने पहले भी कहा कि किसी भी क्लिनिकल स्टेज पे HIV और TB साथ साथ चलते हैं, तो TB जो है वो HIV का जैसे भाई है, और TB की वजह से HIV जल्दी प्रोग्रेस करता है, और HIV की वजह से TB जल्दी प्रोग्रेस करती है और डेथ हो सकती है, और HIV की वजह से TB की प्रेजेंटेशन एटिपिकल हो सकती है. तो अगर आपको पेशेंट है जिसकी TB सही नहीं हो रही है और डिसेमिनेटेड है, उसमें तो आपने लाजमी HIV टेस्टिंग कराएं. अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है और उसको सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी नहीं रिजॉल्व हो रही है, या दारिया 10 उल्टियां हैं, या उसके एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आता है या लूज मोशन के साथ आता है, तो आपने उसका TB की एवेल्युएशन करानी है बाय स्प्यूटम, AFB स्मीयर स्प्यूटम, जीन एक्सपर्ट या कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी या फिर टिश्यू डायग्नोसिस किसी भी तरह से, बिकॉज HIV is the most significant risk factor for progression of latent TB to active TB and can occur at any CD4 count, or the advanced HIV the presentation could be atypical. Unless treated, this can lead to rapid progression to death. So always consider TB in an HIV infected person with pulmonary infiltrate. Testing पे आ जाते हैं. Testing is the only sure way. Assumption करना कि इसको HIV है, इसको नहीं है, नहीं. The definite way to diagnose the disease is testing. Testing is very easy. मतलब अब
दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, पहले तो हम 24 घंटे जब हम टेस्ट कराते थे 24 घंटे वेट करते थे कि रिपोर्ट आए कि नहीं आती। अब रैपिड टेस्ट के साथ जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग होती है उसके साथ आपको रिजल्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके साथ आपको रिजल्ट 15 से 30 मिनट में आ जाता है और बिल्कुल पेनलेस। सिर्फ एक ड्रॉप चाहिए आपको ब्लड का या स्लाइवा का सैंपल चाहिए जिससे आप HIV डायग्नोज कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सेंटर्स है उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी पेशेंट की कॉस्टिंग के इश्यूज हैं तो आप उसको NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सेंटर्स में जाके भेज सकते हैं, वहां पे वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एनी हु शुड बी टेस्टेड, आई थिंक मेरी अपनी ये है और हमारे जो ID फिजिशियंस है उनकी भी ये रिकमेंडेशन है। एनीवन यू आर सस्पेक्टिंग, जहां भी आपको सस्पेशन हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि इसको इन्फेक्शंस हैं और वो सही नहीं हो रहा, आप HIV ट्रीट कराएं। प्रेग्नेंट फीमेल्स में लाजमी कराएं, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी में HIV ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं तो जो रिस्क, जो बच्चे को ट्रांसमिशन का जो है, जो डिजीज है वो वैसे विदाउट ARV 10% होता है, विथ ARV इट गोज बिलो 1%। तो कोई भी है, होमोसेक्सुअल्स, IV ड्रग अब्यूजर, हेटेरोसेक्सुअल्स, नॉट इन मोनोगेमस रिलेशनशिप, प्रिजनर्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, people having risking unscreened plus product, sexually transmitted infections, TB है, hepatitis B है, C है, या जो मैंने clinical presentations आपको बताई, आप HIV उसका टेस्ट करा लें। ठीक है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, 30 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसकी बात यह है कि ये विंडो पीरियड जो कि इनिशियल एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि 2 से 3 हफ्ते का होता है, ये उसमें अगर HIV लगे क्योंकि उस वक्त तक आपकी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं तो ये मिस कर सकता है। और अदरवाइज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। अगर ये विंडो पीरियड में एक दफा HIV एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है लेकिन आपको सस्पिशन है कि इसको HIV हो सकता है तो 6 हफ्ते और 3 हफ्ते पे टेस्ट रिपीट कराएं। सिंपल, आपने सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए और आपने टेस्ट कर दिया। फिर इसकी कंफर्मेटरी टेस्टिंग होती है, फोर्थ जनरेशन ELISA बेस्ड टेस्टिंग होती है जिसमें हम ज्यादा सेंसिटिव एसे से टेस्ट करते हैं और जो कि पेशेंट को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बता सके कि इसको HIV है नहीं। तो रैपिड टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उन पेशेंट्स को आप भेजे टू अ लेबोरेटरी जो कि फोर्थ जनरेशन ELISA टेस्ट करती है। ये 2 वीक्स के अंदर पॉजिटिव हो जाता है और ये WHO और CDC से रिकमेंडेड है। ये इसमें 2 किस्म की चीजें होती है, एक एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट होता है एंड इफ दिस इज पॉजिटिव दिस पेशेंट इज लेबल्ड एज HIV। और मैंने पहले भी बताया कि अगर HIV 1 और 2 पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये नहीं है कि HIV 1 और 2 बेचारे को दोनों है। नो, इट मीन्स कि ये जो ऐसे है इसकी कैपेसिटी है HIV 1 और HIV 2 दोनों डिटेक्ट करने की। और जहाँ टेस्ट इनडिटर्मिनेट आता है या स्टिल डाउट है तो फिर आप उसमें न्यूक्लिक एसिड या PCR बेस्ड टेस्ट करा सकते हैं और जिसमें वायरल लोड भी आपको पता चल सकता है। लेकिन ये क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और बिकॉज फोर्थ जनरेशन टेस्ट इतने सेंसिटिव हैं कि अब हम न्यूक्लिक एसिड टेस्ट नहीं कराते हैं। हाँ, जहाँ विंडो पीरियड में आपको डिटेक्ट करना है या जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने देना है उसमें फिर जो है आपकी ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं कि आप अर्ली HIV को पिक कर सकें एक्यूटली। सो दिस इज द एल्गोरिथम। अगर फोर्थ जनरेशन पॉजिटिव है तो आपने उसको एज अ पॉजिटिव ही लेबल करना है और अगर नेगेटिव है तो आपने उसको नेगेटिव लेबल करना है। अगर इनडिटर्मिनेट और नेगेटिव है, स्पिन सस्पिशन हाई है तो फिर आपने उसका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराना है जो कि अगर पॉजिटिव है तो HIV है और अगर नेगेटिव है तो फिर आप उसको फॉल्स पॉजिटिव करेंगे। और देयर आर रीजंस, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है बिकॉज दिस इज द सेंसिटिव टेस्ट, तो उसमें आपने उसको रिपीट करना होता है 3 महीने और 6 महीने या फिर आपने उसका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराना होता है टू कंफर्म कि ये एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव है। लेकिन उसमें जो कट ऑफ वैल्यू होती है बहुत ही थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती। इसीलिए सेंसिटिव रैपिड टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज गो फॉर फोर्थ जनरेशन एसेज, ठीक है, जो कि सेंसिटिव भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं।
कब स्टार्ट करना चाहिए? अब CD4 की रिकमेंडेशन खत्म हो गई है। कहीं भी whenever you diagnose HIV, उस पेशेंट को रेफर करें। हाँ, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए रेफर करें उस और उसकी ARV शुरू करें। बट ARV इतना आसानी है, ARV हम वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज HIV डायग्नोज हुआ और कल हमने ARV स्टार्ट कर दी, बिकॉज एक तो पेशेंट की कमिटमेंट चाहिए, उसको सारी उम्र ये दवाएं लेनी है। तो जब तक पेशेंट मरीज मेंटली प्रिपेयर नहीं है दवा लेने के, आप उसको ARV ये स्टार्ट नहीं करेंगे। वंस ही इज कैपेबल, ही इज स्टेबल इनफ और वो उसकी कमिटमेंट उठा रहा है तो शुरू करें। सो ऐसा नहीं है आज डायग्नोज किया और हफ्ते के अंदर ARV शुरू करनी। यू कैन वेट टिल पेशेंट इज मेंटली स्टेबल कि वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कर सकता है कि दवा लेने के लिए। ये सारी एंट्रोवायरल रेट्रोवायरल मेडिकेशंस हैं जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि टाइम कम है, लेकिन ये 6 ग्रुप्स हैं जो कि अभी हम यूज करते हैं। दैट इज NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें एबाकवीर, ज़ाइडोविडीन, टेनोफाविर, लेमिविडीन, एमट्रिसिटाबीन आ जाती है। फिर प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं जिसमें आपके एंडीनवीर, रेट्रोनवीर, रिटोनवीर, टोपिनवीर आ जाती हैं। फिर फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं, आपके एंट्री इनहिबिटर्स हैं, आपके इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हैं, दैट इज डोलोटिग्रावीर, बेसिटिग्रावीर, एल्बिटिग्रावीर, रेल्टिग्रावीर, और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं जैसे एफाविरिन, नेविरपिन, लेल्पिवरिन, डोरावरिन। सो ये सारे ग्रुप्स हैं, 5 से 6 ग्रुप्स हैं जो कि ARV में शामिल है। और अमूमन जब हम दवा देते हैं तो हम 2 ग्रुप से दवाई देते हैं। या तो हम दो NRTI देते हैं along with NNRTI, या फिर हम 2 NRTIs along with integrase inhibitors देते हैं। या फिर हम 2 NRTIs along with PIs देते हैं। Usually ARV means antiretroviral therapy कॉम्बिनेशन में दी जाती है, और जिसमें 2 दवाएं एक ग्रुप से ली जाती हैं और तीसरी दवाई एक अलग ग्रुप से ली जाती है। यूजुअली जो दवाएं यूज होती है वो इन 4 ग्रुप से यूज होती है, दैट इज NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स एंड इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। तो ये सारी जो है दवाएं इन 4, और कॉम्बिनेशन में यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 ली जाती है। और इस ग्रुप से जो बैकबोन होती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें से 2 दवाएं ली जाती हैं। ये एक मैकेनिज्म है, आप डिफरेंट मैकेनिज्म डिफरेंट जगह पे टारगेट करके दवाएं देते हो ARV की। कुछ जो होती हैं, ये जो वायरस है जो कि वायरस की एंट्री अटैचमेंट पे टारगेट करती हैं। फिर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होती हैं, ये एक वायरल RNA है, ठीक है, ये इस पे एक्ट करती हैं, ये इसकी रेप्लिकेशन नहीं होने देती, DNA बनाने नहीं देती हैं। फिर कुछ होती हैं जो कि इंटीग्रेज इनहिबिटर्स होती हैं कि वायरस की जो DNA बना है उसकी न्यूक्लिक एसिड में इंटीग्रेशन को रोकती हैं। फिर जो होती हैं वो कि वायरस बन गया, उसका DNA बन गया, उसने प्रोटीन्स बना ली, उस प्रोटीन्स की जो कटिंग होनी होती है उस कटिंग को इनहिबिट करती हैं और उसको मैच्योरेशन कन्वर्ट करती हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन इन्फेक्शंस का है। ट्रीटमेंट पहले बहुत सारी दवाएं होती थी जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जो कि मुश्किल होती थी। अब एक दवा होगी, एक सिंगल गोली, एक गोली जिंदगी की एक दवाई लेनी है दिन में 1 दफा। सो ट्रीटमेंट इतना सिंपल हो गया है। WHO रिकमेंड करती है, मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लाइन में आप 2 NRTIs, 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स करें, और फर्स्ट लाइन जो आप दवा यूज करते हैं हम डोलोटिग्रावीर यूज करते हैं, विच इज एन इंटीग्रेज इनहिबिटर।
इसके साथ हम अगर एक और रेजिम जो हम WHO फर्स्ट लाइन रिकमेंड करती है कि हम 2 NRTIs प्लस एफाविरेंस यूज करें। सो यूजुअली अब ट्रीटमेंट सिंपल हो गया है कि फर्स्ट लाइन में सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन यूज आ रही है WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से कि आप 2 NRTIs करें और डोलोटिक्लिविर करें या 2 NRTIs और एफाविरेंस करें। पाकिस्तान में हम जो फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ ट्रायल्स है वो है टेनोफोविर, लमिवोडिन और डोलोटिक्लिविर। ये एक सिंगल टैबलेट आती है, इसकी मॉनिटरिंग की इतनी जरूरत नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस बैरियर बहुत ज्यादा है और ये इसके साइड इफेक्ट्स हमें हम मरीज को कहते हैं कि बस आपने ये गोली खानी है, खाते रहें, कुछ मसला हो तो हमारे पास आए, वरना 6 महीने बाद अपना चेकअप करें। या फिर हम टेनोफोविर, लैमिवोडिन और एफाविरेंस यूज करते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं और इसकी भी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है और टॉलरेंस भी बहुत अच्छी है। एनरोलमेंट पे आपने क्या करना है, आपने HIV टेस्ट करना है, कंफर्मेशन पे CD4 काउंट करा सकते हैं तो करा लें, ना कराना हो क्लिनिकल स्टेज इज इनफ। आपने हेपेटाइटिस B, C और HIV और सिफिलिस के लिए स्क्रीनिंग करनी है और TB के लिए स्क्रीनिंग। शोभा, इफ आई मे इंटरप्ट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो प्लीज वाइंड अप। ठीक है, आई एम डन, इट्स डन। ठीक है, और ये आपने स्क्रीनिंग करनी है फॉर कोमॉर्बिडिटीज। आपने बस दवा शुरू कर देनी है, प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है और आपने उसका हीमोग्लोबिन चेक करना है अगर आप उसका ज़ाइडोविडिन दे रहे हैं और यूरिन TR करना है, केराटिन करना है अगर आप TB क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वायरल लोड आपने 3 महीने पे करना है मॉनिटरिंग और अगर वो सप्रेस हो गया है तो फिर 6 मंथ्स पे, और अगर बिल्कुल ठीक है मरीज और सब ठीक है तो फिर आपने ईयरली वायरल लोड कराना है। फेलियर ये है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो जाएं ऐसी डिजीज से जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से दोबारा हो जाए तो फिर आप सोचें कि आप डिजीज जो थेरेपी है वो फेल्ड हो गई है और आपने अपने उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजें। ये सूरत हाल वो है जब आप इसको इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट के पास भेजें कि अगर आप फेलियर सस्पेक्ट करें ताकि उसकी वो फर्दर टेस्ट करें। कीमो प्रोफाइलेक्सिस, पेशेंट जब इनरोल करें प्रोग्राम में तो उसकी वैक्सीन उसको जरूर कहें कि वो सारी वैक्सीन अपनी पूरी करे। TB के लिए एसिनाइडेड प्रोफाइलेक्सिस दें और अगर उसका CD4 कम है तो उसको प्रोफाइलेक्सिस दें सेप्टॉन। सेप्टॉन उसको बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। तो एक चीज सिर्फ मैं मांगूंगी कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, अगर रिस्क ऑफ एक्सपोजर ज्यादा है तो हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं और एक्सक्यूज मी शोभा, हम प्रेप और पेप पे अलग सेशंस कर लेंगे, वी हैव एम्पल टाइम सब्सिक्वेंट उसके अंदर। ठीक so, है, let's save your सेंटर्स यहाँ पे हैं रुक जाते हैं एंड वी आपकी जो ये स्लाइड्स जो बच गई है ना ये सब्सिक्वेंट सेशंस में वी कैन यूज देम। ओके जी, so we have to stop here. Thank you very much. Thank you, Dr. Shobha. So please, the participants are requested to fill the post test. ये बहुत important होगा आपके certificate and CME के लिए. So kindly fill the post test, and in the meantime we can take any question. I think Dr. Busha ने already respond किया है many questions को. So if you have any question, you can paste on the chat. But please fill out the post test, as this is very important. So we give you a couple of minutes, so we are already short of time, so kindly quickly fill out the post test form. इसके बाद एक लिंक हम शेयर करेंगे evaluation के लिए, वो भी बहुत important है, so kindly उसको भी fill कर दीजिए. And all the questions are, I think, addressed. I'm just looking at the chat. So it was according to the country recommendation, as Dr. Busha has already responded, that country recommendations are based on cost, and the best available test may not be the recommended test for the country. Or इसी तरह और कोई specific question? Okay. Anything regarding the case you presented, अगर उसके बारे में कोई question है या? जी, questions मैं देख रही हूँ लेकिन specifically questions इसमें नहीं आए. There is one question: what are we supposed to do if the patient refuses HIV or TB testing? Please guide. So let me take this question. So यहाँ पे role physician का आ जाता है. Refusal generally 2-3 उसके reasons होते हैं. एक तो lack of information and lack of understanding. So ये treating physician का role होता है, ये जो healthcare workers
सिचुएशन में होते हैं, उन क्लिनिक्स पे पोस्टेड होते हैं कि वो पेशेंट्स को एक्सप्लेन करें कि किसी भी मर्ज की टेस्टिंग की एक्चुअली वजह या रीज़न क्या है। और एक मर्तबा अगर पेशेंट को आप एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाए तो जनरली रिफ्यूज़ल की लेवल बहुत लो हो जाती है। दूसरा होता है फियर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो स्पेशली HIV और TB के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मरीज के अपने लिए तो इम्प्लीकेशन है लेकिन उसके घर वालों के लिए भी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, उसके सेक्सुअल पार्टनर के लिए बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। और जनरली अगर ट्रीटिंग फिजिशियन या जो हेल्थ केयर वर्कर्स कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं मरीज से जिनसे कम्युनिकेशन हो रही है, अगर वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दें तो बहुत से मरीज जो हैं वो कन्विंस हो जाते हैं एंड दे डू गेट टेस्टेड। सो एक तो अपने टेस्ट कराने के ऊपर उनकी काउंसलिंग करना और उनको एक अंडरस्टैंडिंग शो करना और उनको सोचने का टाइम देना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट HIV के कॉन्टेक्स्ट में आता है वो ये कि पार्टनर को इन्फॉर्म करना है। और पार्टनर को इन्फॉर्म करना वो मरीज की अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम पुलिस का रोल नहीं अदा कर सकते और हम जानते बूझते हुए इस तरीके की इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होता है। लेकिन जिम्मेदारी एक्चुअली मरीज की होती है कि वो अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म करे, उनकी स्क्रीनिंग कराए और अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो प्रोग्राम में एनरोल कराए। तो ये सब कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। ज़्यादातर HIV सेंटर्स के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसी वजह से पोस्टेड होते हैं क्योंकि इस किस्म के इश्यूज एनकाउंटर होते हैं एंड देन लोगों को डिप्रेशन या शदीद एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है एक दफ़ा जब डायग्नोसिस डिस्क्लोज हो जाती है। सो हम अपने ये एको सेशंस के अंदर कम्युनिकेशन और काउंसलिंग के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे और आप लोगों से क्लिनिकल केसेस के साथ ये वाली चीज़ें एड्रेस ज़रूर करेंगे ताकि अगर आप को सिमिलर प्रॉब्लम फेस जब करेंगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो आपको उसे डील करने में आसानी हो। जी, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर बुशरा, शुड एवरी TB पेशेंट should be screened for HIV? So I think this is part of our national guideline. Dr. Shobha can answer that. Yes. I think yes. Every TB patient, जहाँ भी suspicion है तो आपको उसका HIV टेस्ट कराना चाहिए. I mean, it's better to know the HIV status. इनफैक्ट अब तो गाइडलाइंस में भी इंक्लूड कर लिया गया है इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर HIV के पेशेंट की TB स्क्रीनिंग हर विजिट पे और हर न्यूली डायग्नोज TB पेशेंट की HIV स्क्रीनिंग आर एब्सोल्युटली एसेंशियल नाउ क्योंकि हमारे पास HIV का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और हर TB के मरीज की HIV स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है और अब हमें पाकिस्तान में भी इस प्रैक्टिस को की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करनी है। एक और चीज, प्रेगनेंसी में भी हम जो है अब HIV टेस्टिंग कराएं, एटलीस्ट वंस जरूर कराएं, बिकॉज अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम HIV ARV स्टार्ट करते हैं तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द फेटस इज वेरी लो। सो प्रेगनेंसी में भी हमें लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर में तो लाजमी एक दफा HIV टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। सही, इसको हम टैकल करेंगे अगले सब्सिक्वेंट अपने सेशंस में क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रीइंफोर्स और रिपीट करने की ज़रूरत होगी। सो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी विल रिविजिट दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन। जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हमें 14 पोस्ट टेस्ट रिसीव हुए हैं। काइंडली अगर आप फिल कर रहे हैं तो इसको फिल कर दीजिए। और आई थिंक आज का लेक्चर भी एज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग था और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम प्लान एको ग्रुप पे भी शेयर कर लेंगे और इसको वाइडर डिसेमिनेशन करेंगे आप सबके साथ। और एंड एज आई सेड कि जब हमारे पास ईमेल्स आ जाएंगी आपकी जिन्होंने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट किए हैं तो हम CME एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में हैं तो इंशाल्लाह वी विल गेट बैक ऑन योर ईमेल्स। सो डॉक्टर बुशरा, आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फॉर्मली आपकी तरफ बढ़ते हैं फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। और So thank you very much. Thank you शोभा कि आपने टाइम निकाला एंड ये कॉन्ट्रीब्यूशंस दे वाइडर गुड के लिए हैं। हम सब वॉलंटरी बेसिस के ऊपर अपना टाइम और एफर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिशियंस को बेसिक स्किल्स के साथ इक्विप कर दें so that they are able to recognize these conditions जिनको मिस करना के बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं. सो हम अपने ये एंडेवर्स जारी रखेंगे. वी आर ग्रेटफुल टू पारसा एको फॉर हेल्पिंग अस कंडक्ट दीज सेशंस. इसके अलावा IHITC इज़ द हब ऑफ दीज एक्टिविटीज़ और ये हमने लॉन्च की हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ and a common management unit for HIV, TB and malaria, Islamabad. CME accreditation का मैं ये बता दूं कि it is in process and we are hoping कि हमें AKU से CME accreditation मिल जाएगी, but it is still in process. So जब हमारा ये process complete हो जाएगा तो we will add one more logo to our very busy poster here. So there will be one more logo of Aga Khan University on our poster. So thank you very much. और जो भी आपके इंटरेस्टिंग केसेस हो या कॉम्प्लेक्स केसेस हो वो ज़रूर हमें भेज दिया करें और हम उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस में और उसके जो क्वेश्चंस उसमें से अराइज करेंगे we will try and address them. So thank you very much. Thank you very much, Dr. Bushra, and Kiran and Dr. Shobha. So हम formally इसको close करते हैं and thank you very much. Allah Hafiz. So we are grateful and thankful to our experts and participants. I would like to thank Dr. Asad Ali Chaudhary, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, Haris for IT support, and Salman. Allah Hafiz. Uzair, please, you can call off the meeting.